देख रहे हैं न्यूज़ मोमेंट हिंदी। आइए जानते हैं आज की कुछ विशेष खबरें विस्तार रूप से। हर वर्ग के पुरोहितों को भत्ते के रूप में बंगाल सरकार 1000 रुपये करके हर महीने देगी। शुक्रवार के दिन पश्चिम बर्धमान तृणमूल जिला कार्यालय अग्निकन्या भवन में पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी सह एमएलए पांडेश्वर निगम प्रशासक पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल के स्पोक्स पर्सन तापस बनर्जी, कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह, अशोक रुद्र नेताओं द्वारा संवाददाता सम्मेलन में राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा पुरोहित, मौलवी, पादरी, सिख ग्रंथियों को हर महीने भत्ते के रूप में 1000 रुपये करके देगी। उससे पहले इन लोगों को फॉर्म भर के देना होगा। स्वीकृति मिलने से उनको यह भत्ते के हकदार होंगे, ऐसा ही प्रेस वार्ता के दौरान कहा। पश्चिम बर्धमान जिला के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी एवं नगर निगम प्रशासक ने कहा कि यह दूसरा चरण है। रविंद्र पुरोहित वर्ग के कार्यक्रम में और नाम आए थे। अब तक कुल जिले में 2633 लाभवानों को यह भत्ता स्वीकृति मिली है। প্রত্যেকের খেয়াল রেখেছি এবং যারা যারা বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে তাদের অসুবিধার কথা জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী তার বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমের মাধ্যমে তাদেরকে কি করে সাহায্য করা যায় সেই চেষ্টা তিনি করেছেন। ছাত্রছাত্রীদের জন্য তিনি করেছেন, শ্রমিকদের জন্য করেছেন, কৃষকদের জন্য করেছেন, সবার জন্যই করে, মহিলাদের জন্য করেছেন। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বেশ কিছু পুরোহিত যারা আছেন, বিভিন্ন ধর্মে, হিন্দু ধর্মে আছেন, খ্রিস্টান যারা আছেন, শিখ যারা আছেন, যারা পুজো করেন, তারাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অ্যাপিল করেছিলেন যে আমাদের অনেকের অসুবিধা আছে, আমাদের জন্য যদি আপনি কিছু করেন। এবং তাদের অসুবিধার কথা মাথায় রেখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পুরোহিত ভাতা স্টার্ট করেছিলেন এবং পুরোহিত ভাতা স্টার্ট হওয়ার দিন 10-এর মধ্যেই প্রথম লটে কিন্তু ফার্স্ট ফেজ 1-এ আমাদের এই জেলায় 685 জনকে পুরোহিত ভাতা অলরেডি দেওয়া হয়েছে। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকে 41, দুর্গাপুর ফরিদপুরে 52, এএমসি এলাকায় 361, বারামণিতে 54, আসানসোল সাউথ এবং রানীগঞ্জ, যেটা বিডিওর আন্ডারে পড়ছে, রানীগঞ্জের আন্ডারে 51, রানীগঞ্জের শহরে তখন হয়নি, অন্ডারে তখন শূন্য ছিল, জামুরিয়াতে 50 এবং ডিএমসি এলাকায় দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায় 50 এবং কাঁকসা এলাকায় 26, 685 জনকে ফার্স্ট পেজে দেওয়া হয়েছে। তারপর এই জেলাতে আমাদের একটা পুরোহিত সম্মেলন হয়, যেটাতে তাপসদা, আমাদের হরিরাম সিংজি, আমাদের অশোক রুদ্র সবাই উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে বেশ কিছু পুরোহিত যারা ছিলেন তারা বললেন যে তারাও এই স্কিমের আওতায় আসতে চান এবং তারাও অ্যাপ্লিকেশন করেছিলেন। এবং আপনাদের জেনে ভালো লাগবে যে আমাদের সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আবার এই জেলায় নতুন করে 1445 জনকে সেকেন্ড ফেজে অ্যাপ্রুভাল দিয়েছেন। তারাও কয়েকদিনের মধ্যে, দিন 10, 15 বা 1 মাসের মধ্যে পুরোহিত ভাতা পেতে শুরু করবে। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে এর মধ্যে বিভিন্ন চার্চে যারা আছেন তারাও আছেন, এটাও জানতে পারবেন। এর সঙ্গে সঙ্গে যারা আদিবাসী আছেন, ট্রাইবাল, তাদের যারা পুজো করেন, আদিবাসীদের মধ্যে যারা তাদের পুরোহিত আছে, তাদের জন্য এই স্কিমের আওতায় তাদেরকেও আনা হয়েছে এবং তারাও 503 জন, এই সেকেন্ড ফেজে 503 জনকে ইনক্লুড করা হয়েছে। তারাও এই ফেজ 2-তে এই অর্থ পেতে শুরু করবে এবং ফেজ 1-এ যারা অর্থ পাচ্ছে এবং ফেজ 2-তে যারা অর্থ পাচ্ছে, সব মিলে আমাদের এই 1 মাসের মধ্যে এই জেলায় 2633 জন এই পুরোহিত ভাতা পেতে শুরু করবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রেখেছেন এবং এটাই আমাদের দলের তরফ থেকে আপনাদেরকে জানানোর জন্য আজকে এই প্রেস মিট আমরা রেখেছি। এরপর এই বিষয়ে কিছু বলার জন্য यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ न्यूज़ मोमेंट हिंदी पर। आसनसोल में एकमात्र दुकान जो अपने अलग तरीके के लिए प्रसिद्ध है। 100 साल पुरानी है ये दुकान। इनके पास कुछ बहुत से यूनिक प्रोडक्ट्स हैं। इनके पास खाकरों की काफ़ी वैरायटीज़ हैं, जितने कि आसनसोल में आपको कहीं नहीं मिलेगी। इतना टेस्टी कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसका पता है समीरन राय रोड, ऑपोजिट इन SBI बैंक, आसनसोल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 0341
2305017 या 9547356154। तृणमूल कांग्रेस के लड़ाकू नेता सह परिवहन व स्पोर्ट्स मंत्री मदन मित्र बृहस्पतिवार की शाम कल्याणेश्वरी मंदिर में आते हैं, लेकिन मंदिर बंद हो जाने के कारण बाहर से ही माथा टेककर आशीर्वाद लेते हैं। दूसरी ओर कल्याणेश्वरी तृणमूल आंचलिक कमेटी के सभापति बुरा खान और उसके समर्थन के लोगों का स्वागत करते हैं। अब्दुल मुनाफ इलियासी के अनुसार ईद मिलादुन नबी के मौके पर लोगों के बीच 1500 मास्क और 1500 बोतल पानी वितरित किया गया। इसके साथ ही लोगों के हाथों में सैनिटाइजर भी दिया गया। ईद मिलादुन नबी के मौके पर न्यूज़ मोमेंट टीम को कई लोगों ने मुबारकबाद भेजी, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सीनियर मेंबर और फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी सैयद मतलूब हाशमी, आसनसोल के फॉर्मर काउंसिलर वसीमुल हक आदि शामिल हैं। जैसे जैसे छठ पूजा नज़दीक आ रही है, छठ घाटों की सफाई जोर शोर से किया जा रहा है। शुक्रवार को पारबेलिया छठ घाट की साफ सफाई का जायजा लेने नितुड़िया पंचायत समिति के सह सभाधिपति सह नितुड़िया ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष शांति भूषण यादव और सालतोड़ ग्राम पंचायत के प्रधान सुमित सागर प्रसाद यादव अपने समर्थकों एवं पंचायत के अधिकारियों के साथ पहुंचे। शांति भूषण प्रसाद यादव ने कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिया कि छठ के पहले घाट के किनारे जो जंगल हो गया है उन सबको साफ कर घाट को सुंदर बनाया जाए। रास्ते जो भी खराब हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जाए। इस मौके पर श्री यादव ने कहा कि इस छठ घाट पर पारबेलिया, शालतोड़, नितुड़िया, सरबरी, भामुरिया से भारी संख्या में लोग छठ घाट में आते हैं। इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए सालतोड़ पंचायत समिति द्वारा विशेष व्यवस्था की जाएगी। घाट आने वालों के लिए मास्क, सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी। बड़ाकर हनुमान चढ़ाई के निकट शुक्रवार को बड़ाकर से आसनसोल की ओर आने वाली मिनी बस ने स्कूटी सवार 20 वर्षीय युवती पाखी को पीछे से धक्का मार दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गई। बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर के एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। घटना संबंध के बारे में बताया जाता है कि बड़ाकर हनुमान चढ़ाई मंदिर के निकट चासापाड़ा के रहने वाले मंटू की 20 वर्षीय लड़की परिवार के 2 बच्चों को लेकर घुमाने ले जा रही थी। इस बीच आसनसोल की ओर आने वाली बस ने स्कूटी सवार युवती को धक्का मार दिया, जिससे उसका सिर फट गया। दोनों बच्चों को हल्की चोट आई है। सूचना मिलने पर बड़ाकर पुलिस प्रभारी रविंद्रनाथ दुलई ने घायल युवती को आसनसोल जिला अस्पताल भेजा, जहां स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सक की सलाह पर बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर में भर्ती कराया गया है। प्रदूषण मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से आसनसोल होगा साइकिल यात्रा का शुभारंभ। सत्य सनातन सेना के बैनर तले मेरा पीएम मेरा अभियान स्लोगन के साथ हिंदू एकता को बढ़ावा देने के लिए आगामी 1 नवंबर को आसनसोल से दिल्ली तक साइकिल यात्रा करेंगे सत्य सनातन सेना के जिला महासचिव पवन कुमार सिंह। उक्त बातें पत्रकार सम्मेलन कर सत्य सनातन सेना के जिला अध्यक्ष राजन सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि आगामी 1 नवंबर को आसनसोल के गुजराती भवन से साइकिल यात्रा शुरू होगी, जो 12-13 दिनों में दिल्ली पहुंचेगी। साइकिल यात्रा का उद्घाटन मुख्य अतिथि भाजपा राज्य महिला मोर्चा अध्यक्ष अग्निमित्रा पॉल हरी झंडी दिखाकर करेंगी। मौके पर मुख्य रूप से भाजपा जिला सलाहकार सुब्रत घाटी उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहेंगे। राजन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 6 वर्षों में जितने कार्य किए हैं उसका प्रचार प्रसार करने एवं प्रदूषण मुक्त भारत बनाना मुख्य उद्देश्य है। इस मौके पर जिला महासचिव पवन कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। मनुष्य को जागरूक करने के लिए वे साइकिल से यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनुष्य को ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का व्यवहार करना चाहिए, इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है, प्रदूषण नियंत्रित होता है। वहीं उन्होंने कहा कि देश में हिंदू संगठन टूट रहा है। हिंदू संगठन को मजबूत करने का संदेश जन जन तक पहुंचाने का प्रचार करेंगे। दुर्गापुर नगर निगम की ओर से अवैध हुक्का बारों में छापामारी। दुर्गापुर शहर के सिटी सेंटर क्षेत्र में कई अवैध हुक्का बार बिना रोक टोक चल रहे हैं।
दुर्गापुर नगर निगम मेयर परिषद सदस्य अमिताभ बनर्जी के नेतृत्व में शुक्रवार को सिटी सेंटर के एक मॉल और बेजल अंबुजा के अवैध हुक्का में छापामारी की गई। अमिताभ मुखर्जी ने कहा कि उन्होंने शहर के 5 हुक्का बारों में छापामारी की। हुक्का बार संचालकों के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। इसके अलावा कुछ हुक्का बार में डांस फ्लोर हैं जो पूरी तरह से अवैध हैं। सभी हुक्का बारों को बंद रखने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों के बाद जब नगर निगम खुलता है तो बोर्ड में चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा कि ऐसे हुक्का बारों के खिलाफ क्या कदम उठाया जाए। वहीं स्थानीय लोगों ने विरोध किया कि नगर निगम और पुलिस की नाक के नीचे इस तरह के अवैध हुक्का बार कैसे चल रहे हैं। बढ़ाकर से लाली गुप्ता के अनुसार सेल ग्रोथ रामनगर कोलियरी के एजीएम शैलेंद्र कुमार ने गुरुवार की रात कुल्टी गेस्ट हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। सूत्रों के अनुसार काम करने के बाद वह रात्रि 10 बजे भोजन करने के बाद उक्त गेस्ट हाउस में अपने कमरे में सोने चले गए। शुक्रवार की सुबह उनके नौकर उन्हें जगाने के लिए दरवाज़ा खुलवाने के लिए प्रयास किया, पर काफ़ी देर तक दरवाज़ा नहीं खोलने पर उक्त कर्मचारी ने गेस्ट हाउस के कर्मचारियों को इसकी सूचना दी। उन लोगों ने भी दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलने पर कोलियरी के महाप्रबंधक टीके राय और कुल्टी पुलिस को सूचना दिया गया। घटनास्थल पर अधिकारी और पुलिस पहुंचकर दरवाजा को तोड़कर कमरे में देखा गया कि शैलेंद्र कुमार पंखा से लटका हुआ है। उन्हें फंदे से उतारकर इंदिरा गांधी अस्पताल में लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। सबको पुलिस अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया। मालूम हो कि शैलेंद्र कुमार गेस्ट हाउस में रहते थे और वहीं से ऑफिस आना जाना करते थे। उनका परिवार चासनाला में रहता है। घटना की सूचना मिलने के बाद उनके परिवार और पत्नी रेणु बाला कुल्टी पहुंचे। चासनाला के कई अधिकारी भी सूचना पाकर मौके पर पहुंचे। किस कारण से उन्होंने आत्महत्या की, इसकी जांच कुल्टी पुलिस कर रही है। किसी भी इंसान की मौत कब, कहां और कैसे होगी, यह कोई भी नहीं कह सकता। शुक्रवार की सुबह ऐसे ही एक आश्चर्यचकित घटना घटती है एक आदमी के साथ, जिसकी मौत बाइक को किक मारने से हो जाती है। आसनसोल के एचएलडी अस्पताल में उसे ले जाया जाता है, जहां 30 अक्टूबर की सुबह 4 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया। व्यक्ति का नाम कन्हैया माली था। उम्र लगभग 49 से 50 के बीच होगी। वह रामनगर कोलियरी में नाइट शिफ्ट में काम करता था। सुबह 3 बजे जब उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो वह वापस घर आने के लिए वहां से निकलता है। अपनी बाइक को स्टार्ट करने के लिए जब वह किक मारता है, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती है। बहुत देर तक किक मारने के बाद उसकी सांस फूलने लगती है और वह नीचे बैठ जाता है। उसके कुछ साथियों को लगता है कि वह बीमार हो रहा है, तभी उसे एचएलडी अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर द्वारा बताया जाता है कि उनकी मौत हार्ट अटैक के कारण हो गई। उसके सगे संबंधी और साथी यह यकीन नहीं कर पा रहे थे कि उसकी मौत इस तरह से हो सकती है। वह अपनी पत्नी और 3 बेटियों और 1 बेटे को छोड़कर जा चुका है, जिसमें से 2 बेटियों की शादी हो चुकी थी। 1 नवंबर रविवार को जामुड़िया मुस्लिम मोहल्ला यूथ ऑर्गेनाइजेशन की ओर से बाईपास रोड न्यू जलटंकी के पास एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, जहां चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे अभिजीत घटक, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स एएमसी। ऑनर्ड गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे श्री सुब्रता घोष, ऑफिस इंचार्ज जामुड़िया पुलिस स्टेशन। स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे श्री साधन रॉय, ब्लॉक प्रेसिडेंट जामुड़िया ब्लॉक 1। वीआईपी गेस्ट के रूप में उपस्थित रहेंगे एसके शानदार, एक्स बोरो चेयरमैन जामुड़िया बोरो 1। मोटिवेटर के रूप में उपस्थित रहेंगे एसके दिलदार। आज लक्ष्मी पूजा है। बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद लक्ष्मी पूजा मनाने का रिवाज है। माँ लक्ष्मी की पूजा लोग अपने घर में समृद्धि और सुख शांति के लिए करते हैं। यह पूजा औरतों के सम्मान का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि समृद्धि वहीं होती है जहां जिस घर में औरतों को सम्मान दिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हम लोग सभी यह मानते हैं या सिर्फ माँ लक्ष्मी की पूजा ही करते हैं और अपने सभी रिवाजों को भूल चुके हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयोग 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का पालन करता है। यह जागरूकता सप्ताह अभियान नागरिक भागीदारी के जरिए सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के संवर्धन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करता है। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में विभिन्न गतिविधियों के जरिए यह सतर्कता सप्ताह 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 तक मनाया जा रहा है। सप्ताहव्यापी सतर्कता जागरूकता पालन के क्रम में 29 अक्टूबर को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय आसनसोल स्थित नवीन सभा कक्ष में आसनसोल के मंडल शाखा अधिकारियों के साथ एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। श्री M.K. मीणा अपर मंडल रेल प्रबंधक ने अपने संबोधन में कहा कि आसनसोल मंडल ने शिकायतों के विरुद्ध सभी कर्मचारियों के बीच संगोष्ठी व क्विज के आयोजन, सिस्टम में सुधार, निवारक उपाय और त्वरित जांच के माध्यम से सतर्कतापूर्ण रवैया अपनाने की दिशा में कई पहल की है। आसनसोल मंडल भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और सभी हितधारकों के सक्रिय समर्थन और भागीदारी के साथ ईमानदारी को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। श्री कौशलेंद्र कुमार वरिष्ठ मंडल इंजीनियर और श्री मनीष वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक आसनसोल ने भी इस अवसर पर अपने विचारों को साझा किया। उससे पहले श्री M.K. मीणा अपर मंडल रेल प्रबंधक आसनसोल ने हमारे देश के एकीकरण की भावना जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृष्टि और कार्यों से संभव हुई के साथ आसनसोल मंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को संरक्षित और मजबूत करने का संकल्प लिया गया। मोमेंट का संदेश। मजबूर कलम मजबूत नहीं हो सकती।